Dear students, welcome back. Myself Rakesh Singh. Today, I will explain to you important methods of preparation of alcohol. First method, from haloalkanes. What are haloalkanes? Haloalkanes are halogen derivatives of alkanes. Haloalkanes are what? They are halogen derivative of alkane. Is alkyl halide. How we prepare the alcohols from alkyl halide? कैसे बनाते बच्चे? By treating alkyl halide with aqueous KOH. Aqueous KOH. Halogen is more electronegative than carbon, so it is carrying partial negative charge. Carbon carrying partial positive charge. So it attack here. This is a nucleophilic substitution. Nucleophile replacing nucleophile. Strong nucleophile replacing weak nucleophile, you can say, and end result is we get alcohol. By treating alkyl halides with aqueous KOH. याद रखना aqueous word. Alcoholic KOH, to elimination is preferred because that contain alkoxide ions which are very strong bases, and in that case elimination is preferred by treating alkyl halides with aqueous KOH. Benzyl halide with aqueous KOH. Alkyl halide. This is also alkyl part से attached है. So we get aromatic alcohol. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने बात की थी, प्लस benzyl alcohol. It is aromatic alcohol in which OH is attached to side chain of aromatic hydrocarbon. This is benzyl alcohol. Or by treating alkyl halide with moist silver oxide. Moist silver oxide mean moisture. Silver oxide react with moisture to form silver hydroxide. This is silver oxide. React with water. So यहाँ पे आपने preparation में आपने यही लिखना क्या? Moist silver oxide, but reaction में आपने लिखना AgO. Reaction वही होगा बच्चे. This bond is less polar. Silver is less electropositive metal. तो यहाँ पे हमने जैसे इसको आयनिक फॉर्म में शो किया, इसको नहीं किया. यहाँ लोन पेयर से आप दिखा सकते हैं कि अटैच हुआ. We have two type of nucleophiles आप जानते हैं, neutral nucleophiles and what negative nucleophiles. यहाँ पे OH ने अटैक किया, we get alcohol. इसमें क्या मिला? Second method, by reduction of aldehydes and ketones and esters. What are aldehydes? पहले पता होना चाहिए आपको. The compounds with functional group CHO are called aldehydes. The compound with functional group CO are called ketones. What is the difference between aldehydes and ketones? In case of aldehyde, the carbonyl group is attached to hydrogen on one side. On the other side, it can be carbon or hydrogen. But in case of ketone, the carbonyl group is attached to alkyl on both sides. Alkyl or aryl. मतलब दोनों side carbon होने चाहिए. This is ketone. We call ketones as those compounds which contain C double bond O as functional group, and we call aldehydes as those compounds which contain CHO as functional group. And what are esters? Esters की बात कर रहा है. Esters are derivatives of acids in which OH has been replaced by OR. These are esters. इसमें भी carbonyl group है, but यहाँ पे OR. Here R dash is always alkyl, but R can be H also. जैसे formic acid होता है, simplest acid, HC. यहाँ पे आप H लगा दे फिर तो acid हो गया ना. यहाँ पे R आना ही आना, यहाँ alkyl आना ही आना. R dash, this one. This one is always carbon, but it can be H also. For example, in the case of methanoic acid, formic acid. This was some introduction of aldehydes, ketones. करेंगे कैसे बच्चे? जैसे aldehyde की बात करें, RCH double bond. So by reduction of aldehydes with
डिफरेंट रीजेंट्स आप यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और सोडियम एंड एल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शंस आर। ये बच्चे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, डायरेक्ट हाइड्रोजन H2 से इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये सोडियम अल्कोहल है, सोडियम अल्कोहल रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, वो रिडक्शन करेगा। एंड दिस इज हाइड्राइड रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव जो यहाँ अटैक करेगा और रिडक्शन पास करेगा, हाइड्राइड रिडक्शन। but end result is same, that is CH2O, that is we get alcohol। end result is same, addition on the pi bond and we get alcohol। कौन सा अल्कोहल बना बच्चे? प्राइमरी अल्कोहल। in case of aldehydes we get primary alcohol। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एस्टल्डिहाइड we get ethanol, हाइड्रोजन इन निकल। एस्टल्डिहाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड we get ethanol। ये दिखाया हुआ कार्ड कट, एक H यहाँ ऐड होगा, एक H, 1H here 1H here, पाई बॉन्ड एडिशन कहां पे होगी? पाई बॉन्ड, दैट विल ब्रेक, वी गेट अल्कोहल। हम बात करें कीटोन्स की, रीजेंट्स आर सेम, रीजेंट्स वही हैं बच्चे, हाइड्रोजन निकल और सोडियम अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम AlH, ये इसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव, एंड Li एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम रिएक्शन को लिखें तो यहां क्या बनेगा? R R H O। What is this? We get secondary alcohol। We get secondary alcohol because ketone में जो R है, these R's, ये जो R है, these are what? These are carbon atoms। For example, simplest ketone is acetone। In that case, we get isopropyl alcohol, CH3 CH2। मीन हमें एक बात क्लियर होगी कि अगर हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे we will get प्राइमरी अल्कोहल, और अगर हम कीटोन की रिडक्शन करेंगे we will get सेकेंडरी अल्कोहल। ये कीटोन एसीटोन लिया, so we got what? आइसोप्रोपाइल। मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शंस आर दीस। हाइड्रोजन निकल डायरेक्ट हाइड्रोजन H2 से कैटालिटिक रिडक्शन, सोडियम अल्कोहल रिएक्ट करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, ये रिडक्शन देखिए H के साथ HH ऐड होंगे। और जो हाइड्राइड वाली है इसमें H नेगेटिव, H जो नेगेटिव हाइड्राइड Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव, तो जो H नेगेटिव है वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल बढ़ के। डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शंस आती है। इसमें कैटलिस्ट ने अपना सरफेस देना, दोनों रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होंगे आमने सामने और पाई बॉन्ड पे H2 ऐड हो जाएगा। इसमें HH एटम सोडियम अल्कोहल रिएक्ट करेगा, बट एंड रिजल्ट इज सेम इन ऑल केसेस, वी गेट अल्कोहल। आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म तो है नहीं है, तो इसलिए ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस देने की आपको जरूरत नहीं है बच्चे, लेकिन थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। So these are doing different type of reduction। Next is from esters। esters में क्या है बच्चे? esters में हमारे पास है फार्मूला, मैंने बताया आपको, RCOOR डैश। R can be H or alkyl, but R dash is always alkyl, remember। इसकी रिडक्शन रीजेंट यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन निकल का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं, कैटालिटिक नहीं है, बाकी दोनों रीजेंट यहाँ पे हैं। दैट इज वी कैन यूज सोडियम एंड अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी है। So we can use lithium aluminum hydride or sodium and alcohol। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेके एस्टर ले लें, जैसे CH3COOC2H5। व्हाट इज दिस एस्टर? इथाइल एसीटेट, एस्टिक एसिड का एस्टर है। दिस इज एस्टिक एसिड, H की जगह R को ना इथाइल एसीटेट, दिस इज एस्टिक एसिड। कॉमन नेम हो गया एस्टिक, IUPAC नेम इसका इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, इथेन O8। हमने इसकी बच्चे रिडक्शन करी किससे?
से सोडियम अल्कोहल, दो रीजेंट बताए उसने, रीजेंट आपको याद रखने हैं, और दूसरा रीजेंट बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे रिडक्शन क्या है बच्चे, यहाँ पे रिडक्शन एक तो यहाँ पे है इस बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3CH2, एक H पाई बॉन्ड के टूटने से, एक पोलर बॉन्ड के टूटने से, इस बॉन्ड OH, प्लस इधर से भी क्या बनेगा बच्चे C2H5OH, we get two molecules of alcohol, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ना, so we get CH3CH2OH C2H5OH, फाइल एस्टेट। ये रिडक्शन मैंने दिखाई है यहाँ पे ब्रैकेट में, जनरल नॉलेज के। सीरियल बॉन्ड हो एक पाई बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड लिखे यहाँ पे, इधर भी दिखा देता हूँ जो यहाँ पे दिखाया हुआ है थोड़ा बड़ा करके, RCOOR डैश। एक रिडक्शन यहाँ पे है HH, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक रिडक्शन यहाँ पे है पाई बॉन्ड पे HH, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बना RCH2OH, CH2, कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, एक पाई और एक ये पोलर, CH2OH और R डैश OH। अगर R और R डैश की वैल्यू इस हिसाब से हो कि डिफरेंट अल्कोहल दे तो डिफरेंट अल्कोहल भी बन सकते, सेम भी बन सकते। CH3 रखा हो, इथाइल लगाया हो तो फिर दोनों साइड से इथाइल बनेगा, CH3 यहाँ मिथाइल लगाया हो तो इधर से बनेगा इथाइल अल्कोहल, इधर से बनेगा मिथाइल। ठीक है, दिस वाज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ व्हाट, ये था बच्चे रिडक्शन किसकी करनी है आपने, आइदर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और एस्टर्स। याद रखें अगर एल्डिहाइड की करते हैं वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, अगर कीटोन की करते हैं वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। एस्टर से तो प्राइमरी बने, आप देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ फ्रॉम ग्रिगनॉट रीजन। ग्रिगनॉट रीजन क्या होता है RMGX, ग्रिगनॉट रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रीजन है, रीजन विद लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक यूटिलिटी। इसमें एक चीज बच्चे याद रखना कि ये हाईली रिएक्टिव है और इसमें जो R पार्ट है दैट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करता है, जब भी रिएक्शन होगा ये करेगा अटैक, और एज नेगेटिव, मेटल से अटैच है ना, बहुत ही रिएक्टिव है। बनाते कैसे ग्रिगनॉट रीजन, बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ ग्रुप नहीं लगाए, इट कैन बी एल्डिहाइड इट कैन बी कीटोन, तभी मैंने ग्रुप शो नहीं किया। बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड और कीटोन विद ग्रिगनॉट रीजन, ग्रिगनॉट रीजन क्या करेगा बच्चे, इसका ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये अटैक कर देगा कार्बन के कार्बोनाइल पे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इज कैरिंग पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव, व्हाट वी गेट, वी गेट दिस OMG, O नेगेटिव Mg, ये मेटल है आपको पता है। जैसे देखिए ना, जब इसने अटैक करना तो पाई बॉन्ड टूटना, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, तो O नेगेटिव ने क्या लेना, जो पॉजिटिव हिस्सा है, एक किस्म से एडिशन हुई पाई बॉन्ड पे, वी गॉट दिस। इसके बाद इसकी कर दीजिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है बच्चे, H पॉजिटिव ओलियो बॉन्ड, H3O पॉजिटिव भी लिखा जाता है। तो हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगी इस बॉन्ड पे, जो ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड है, O नेगेटिव ले लेगा H पॉजिटिव, एंड व्हाट वी गेट अल्कोहल। मैं एक बार फिर से इस रिएक्शन को लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है में आपको। सीरियल बॉन्ड O प्लस RMgX, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे बच्चे, तो व्हाट वी गेट CrOMgX। इसकी करेंगे हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एंड व्हाट वी गेट R एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे O नेगेटिव ले लेगा, दिस इज O नेगेटिव Mg पॉजिटिव, बन जाएगा अल्कोहल। This is very important method because in this we can prepare primary alcohols, secondary alcohol as well as tertiary alcohol। देखिए अगर हम लेते हैं formaldehyde, if we start with formaldehyde we get primary alcohol। देखिए RCH2, OH is attached to primary carbon, carbon attached to one carbon, R can be methyl, R can be ethyl। वो आपने लिखना कि आपको इथाइल अल्कोहल बनाना है, प्रोपाइल बनाना, उसके हिसाब से आप R की वैल्यू को एडजस्ट करें। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप एस्टल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं,
एस्टल्डिहाइड से वी गेट सेकेंडरी, देखिए वी गेट सेकेंडरी। आर की जगह भी मैं वैल्यू फिक्स कर देता हूँ फॉर योर अंडर, आर की जगह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, आर की जगह भी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। आर की वैल्यू भी हम फिक्स कर देते हैं इसकी। तो अगर हम आर की वैल्यू फिक्स करते हैं, सपोज लेट इट बी मिथाइल, यहाँ पे आपको मिथाइल दिखेगा, यहाँ भी मिथाइल दिखेगा, क्या बना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर आप कीटोन लेते हैं बच्चे, देखिए एसीटोन, CH3 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 CO, कीटोन लेते हैं और फिर ट्रीट करते हैं किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, देन वी गेट टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, 1 2 3 4, और जिस कार्बन से OH अटैच है दैट इज टर्शरी कार्बन, so we get tertiary butyl alcohol. So by this method we can prepare primary, secondary as well as tertiary alcohol. प्लस क्या बनेगा बच्चे, MgX को मिलेगा OH, O नेगेटिव को मिला H पॉजिटिव, Mg को क्या मिलेगा OH, दैट इज MgXOH। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, MgX एस्पिहाइड्रेसी यहाँ पे हुई। फर्स्ट स्टेप में ड्राई, एक चीज याद रखना बच्चे, जो हमने ये डाला ये सेकंड स्टेप में डाला, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में सॉल्वेंट ड्राई ईथर है, बिकॉज whenever metals are present in the reaction we use dry ether as solvent, otherwise the metal will react with the water itself, metal water से रिएक्ट कर जाएगा, तो जिस रिएक्टेंट से आप रिएक्ट करवाना चाहते हैं उससे तो रिएक्शन होगा नहीं। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तो वैसे ही बहुत रिएक्टिव होता है, एकदम से वाटर से रिएक्ट करके अल्केन बना देता है ये, और नेगेटिव रिएक्ट विद H पॉजिटिव ऑफ वाटर। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीशन के बाद एडिशन प्रोडक्ट जब बन जाए, तो सेकंड स्टेप में हम इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। Aldehydes and ketones and esters bond reaction with Grignard reagent in presence of ether form addition product which upon hydrolysis form. By this method, इस मेथड से we can prepare primary, secondary and tertiary alcohol. इस मेथड से हम बना सकते हैं बच्चे क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये देखिए दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं तो इन दैट केस वी गेट प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज CH3CH2। इसको भी मैं डिस्कस करता हूं बाद में। अगर हम एस्टल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर हम कीटोन की बात करते हैं वी गेट टर्शरी अल्कोहल। ये मैंने सारे आपको बता दिए। एक यहाँ पे लिखा है ये वाला मैथड, इसको भी देख लेते हैं। इससे प्राइमरी ही बनना बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रीजेंट, ग्रिग्नॉड रीजेंट की करनी है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन पोलर बॉन्ड के बीच में एंट्री करेगा बच्चे, ROMgX, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, और इसकी कर देनी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस वो नेगेटिव ले लेगा, H पॉजिटिव, आपको क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, प्लस क्या मिल जाएगा, MgXN बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नॉड रीजेंट फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। एक और यहां पे दिया हुआ है, बाई ट्रीटिंग एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड OR विद ग्रिग्नॉड रीजेंट। एस्टर्स को ट्रीट करना ग्रिग्नॉड रीजेंट के साथ, देखते हैं करके क्या होता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रिग्नॉड रीजेंट में R इज नेगेटिव, इसी ने अटैक करना। नेगेटिव कहां अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट इज दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, सो इट विल अटैक ऑन इट। व्हाट what will happen, the breaking of polar bond, single polar bond, अगर ये नहीं होता फिर पाई टूटता, सिंगल पोलर, एंड व्हाट we get RCOR या कीटोन, प्लस MgXOR डैश। कीटोन पे अगेन द ग्रिग्नॉड रीजन अटैक, तो आपने पढ़ा भी है ऊपर, this compound ketone is again attacked by the grignard region, it can be ketone, it can be क्या बचे, एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि एस्टर में जो R होता है इट कैन बी H आल्सो, HR एल्काइल। आपको जो मिला कंपाउंड इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, कोई भी हो दैट रिएक्ट विद ग्रिग्नॉड रीजेंट, आपने पढ़ा है अभी पढ़ा रिएक्शन, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, व्हाट डू वी गेट, R R
कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस करिए, वी गेट द अल्कोहल, हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल नेगेटिव। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। देखिए जैसे हमने ये एस्टर ले लिया, एच सी डबल बॉन्ड ओ किया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, we took the ester of formic acid HC double bond, this is negative, this is positive, किसी ने अटैक करना और नहीं यहाँ पे, what we got this, वो मैंने ब्रेक करना था पोलर बॉन्ड। बच्चे जब भी आपने मैकेनिज्म नहीं ना लिखना, अभी मैकेनिज्म लिखे तो पहले पाई बॉन्ड टूटता, फिर अल्टीमेटली सिंगल पोलर बॉन्ड टूटता। तो जब वन स्टेप रिएक्शन लिखा जाता, जब भी किसी कंपाउंड में, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जब भी किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड भी हो और सिंगल पोलर बॉन्ड भी हो, तो फाइनल प्रोडक्ट में आप देखिए सिंगल पोलर बॉन्ड ही टूटता जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे इलेक्ट्रॉन। वहां पे देखिए पाई बॉन्ड भी था और सिंगल पोलर बॉन्ड भी, फाइनल प्रोडक्ट में यही टूटेगा, तो आपने इसी को दिखाना स्टेप में जब भी रिएक्ट, सिंगल पोलर बॉन्ड विल, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में आपने बिठाना। तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, एस्टल्डिहाइड माइनस क्या बनेगा, MgBr वार्ड है, ये बाहर निकल गया, बन गया एल्डिहाइड। अगेन वी रिएक्टेड विद लिग्नॉइड रीजन, पड़ा हुआ है बीच में मीडियम, ठीक है, ये अटैक करेगा। अब पाई, अब सिंगल पोलर है, अब तो पाई का ही नंबर लगना है, पाई विल ब्रेक, व्हाट वी गेट HCl3 और अब करनी इसकी हाइड्रोलिसिस बच्चे, एसिडिक H पॉजिटिव वाटर से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा HCl3 एंड O, दैट इज वी गेट सेकेंडरी। और अगर सपोज करें इट वाज एस्टर ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, इन दैट केस व्हाट वी हैव गॉट टर्शियरी। ठीक है बच्चे, तो ये एस्टर से भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हाउ वी कैन प्रिपेयर, क्या बच्चे, हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर से हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। जैसे देखें इधर से मैं इलुस्ट्रेट कर देता हूँ कि जितना आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे उतना बाद में आपके लिए आसान होगा। CI3COO ग्रिग्नॉट, व्हाट इज हैपनिंग, न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर रहा है, सिंगल पोलर बॉन्ड ब्रेक हो, वी गेट कीटोन CI3COCI3, फिर ग्रिग्नॉट रीजन कीटोन से रिएक्ट करता है, आपको पता है, वी गेट दिस एडिशनल प्रोडक्ट। अब तो पाई बॉन्ड ही टूटना, अब तो सिंगल पोलर है, अगर सिंगल पोलर और पाई दोनों हो तो पहले किसको तोड़ना बच्चे, सिंगल पोलर, कीप इट इन माइंड, वी गॉट दिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस की O नेगेटिव ने ले लिया, H पॉजिटिव, वी गेट टर्शियरी। और अगर हमने एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड लिया होगा तो वी गेट सेकेंडरी, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। नाउ नेक्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कैसे बनाएंगे, लेट अस सी हाउ वी विल प्रिपेयर अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कीन। देखिए अल्कीन क्या होते हैं, कंपाउंड्स विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये होते हैं ना। हमने इससे अल्कोहल बनाना, सपोज बनाएंगे, कौन सा अल्कोहल बना सकते हैं आप, अंडरस्टूड है ये CH2OH। आप ऐसा तो नहीं कर सकते बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ऐसा तो कर नहीं सकते आप, कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, अंडरस्टूड है, पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और पाई तोड़ा तो इसको भी H देना पड़ेगा, मतलब ये, दैट इज वी हैव टू ऐड, एक साइड H ऐड होगा, एक साइड O, एनालाइज करवाना पड़ेगा। सो बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, नाम ही लिखा है बाई हाइड्रेशन, दैट इज एडिशन ऑफ टू अल्कीन, it can be carried out directly as well as indirectly. In indirect process, alkene is first treated with concentrated H2SO4। अल्कीन को पहले ट्रीट करते हैं बच्चे कंसेंट्रेटेड H2SO4 से, H पॉजिटिव OSO3H नेगेटिव। फ्यूरिक एसिड का ये होता है स्ट्रक्चर बच्चे, आप खुद देखिए, मैंने इसको तोड़ के लिया, पॉजिटिव H पॉजिटिव OSO3H, ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव H के ऊपर नहीं है, बेसिकली O के ऊपर है, अगर आप सही स्ट्रक्चर इसका देखना चाहें तो एडिशन होगा,
हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं बच्चे, वी आर डूइंग द इनडायरेक्ट मेथड। तो मैं पहले इनडायरेक्ट मेथड, पहले क्या होगा, जो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा, एक साइड एच ऐड होना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, एक साइड OSO3 H ऐड, we get the addition product ethyl हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर आपने क्या करना है, इसको वाटर के साथ बॉयल करना, HOH, O नेगेटिव बच्चे H पॉजिटिव, एंड वी गेट प्लस क्या बन जाएगा अगेन H2SO4। H2SO4 ने किस्म से इसको कैटालाइज किया, वी गॉट दैट बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मतलब सीधा वाटर ऐड नहीं किया, पहले किसको ऐड किया बच्चे, H2SO4। अब इसमें मार्कोनी कॉप्स रूल वो भी आपने ध्यान में डूइंग एडी, फॉर एग्जांपल प्रोपीन को लेके आप एडिशन करते हैं, H पॉजिटिव OSO3H। तो मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जब आपका अल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, व्हेन द अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल द नेगेटिव पार्ट एड्स टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन। नेगेटिव पार्ट को उस पे ऐड करना जिसके पास हाइड्रोजन कम है बच्चे, याद रखें। मतलब अगर नेगेटिव इधर गया तो H इधर गया, होनी है पाई बॉन्ड। दिस इज मार्कोनी का ऑप्शन, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसकी कर देनी है आपने हाइड्रोलिसिस, बॉयल विद वाटर, नेगेटिव एस पॉजिटिव OH नेगेटिव, H2SO4 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चे, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी CH3 CHOS CH3, वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल, ये दिखाया हुआ है मार्कोनी का, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे रिएक्टिव अल्कीन्स, अगर आपका अल्कीन रिएक्टिव है ये डायरेक्टली ऐड हुआ, उसमें आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपली डाइल्यूट एसिड ऐड करिए, डाइल्यूट एसिड कैटालाइज कर देगा रिएक्शन को, और वाटर डायरेक्टली ऐड, एक साइड H पॉजिटिव एक साइड OH। अब इसमें मार्कोनी रूल याद रखना बच्चे, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस हाइड्रोजन, दैट इज वी गेट CH3 CH3 OH, और इधर क्या बन जाएगा बच्चे, CH2 को मिल जाएगा, we get tertiary butyl alcohol. Marconi cause addition. Negative part goes to that carbon which contain less hydrogen. Directly add water. Indirect addition of water alkene can also be carried out by other methods. और भी methods हैं बच्चे, हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो other methods, that is hydroboration, oxymercuration reduction, these we will study in the next video lecture. Wait till then. For any doubt, you can ask me on my WhatsApp number 946916384. Myself, Rakesh. Thank you. Thank you very